Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A second, no? Okay. So last lecture we discussed about the hydrolysis. So we first know the different types of salt: salt of strong acid and weak base, right? Weak. The salt of strong acid and weak base example NH4Cl. चलेगा ये salt? Okay. Plus this salt is made up of which acid? Strong acid. HCl, right? Strong acid. HCl, strong acid. And which base? NH4OH. That is NH4. Weak Ammonium base. hydroxide. Weak base. base. Ammonium hydroxide. So this is made up of. See how to identify salt किसका बना है? तो कटायन के आगे आप क्या लगा दो? OH लगा दो और अनायन के साथ क्या लगा दो? H लगा दो, right? H plus. Acid मिलेगा और आपको base मिलेगा. HCl is a strong acid. NH4OH is a weak base, right? The salt of strong acid and weak base. बराबर ना? Yes. So class, if we put this salt in water, इसको हम लोग water में डालते हैं तो हमें मिलता है reaction. In the reaction we get NH4, the salt. Plus, what is hydrolysis means? Breaking with the help of water, right? Water. कर रहे हैं हम लोग. So H2O, I write here H2O. So you get NH4OH plus HCl. Okay. Plus first assumption. Almost all salt dissociate almost. Completely. जितने भी सॉल्ट है ऑलमोस्ट सब सॉल्ट, कम सॉल्ट है ऐसे जो डिसोसिएट नहीं होते, पर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सॉल्ट डिसोसिएट completely. Salts are strong electrolyte, most of the salts. So NH4Cl will dissociate completely as NH4 plus and Cl minus. Okay. Now what is weak electrolyte? तो क्लास अमोनियम क्लोराइड के सामने वाटर का डिसोसिएशन क्या होगा? बहुत ज्यादा है, बहुत कम? बहुत कम होगा. कम है. बहुत कम. तो हम लोग वीक उसका डिसोसिएशन निग्लेक्ट करेंगे. वैसे क्या बोलेंगे? मोस्ट ऑफ द वाटर अनडिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड वाटर इसके सामने बहुत कम है, अमोनियम क्लोराइड के सामने. ओके क्लास, देन आपका जो NH4OH बेस है वो वीक है, राइट? और HCl एसिड कैसा है? HCl इज अ Strong acid. तो HCl will dissociate completely as H plus and Cl Cl minus. minus. NH4OH वो भी dissociate होगा, पर HCl के सामने बहुत कम, राइट? Compared to HCl, because this is weak base. So this will also dissociate, but as compared to HCl, dissociation of NH4OH will be very, very less, negligible. Less. Negligible. So what we'll do? We'll don't show dissociation of NH4OH. We show NH4OH as it is. We don't show dissociation of NH4OH because it is weak electrolyte. Okay. So class, NH4Cl dissociate completely. Even HCl dissociate completely. The number of Cl minus on both sides are equal. So what we can do? We can Cancel. Cancel. so class, this salt, from this salt, which ion of salt we can say? Cation. Cation. Cation of salt. देखो चेक करो, अनान तो कैंसिल हो गया. Cation of salt. Yes. Reacting with Water. water. Or solution contains free H plus ions, right? Solution is acidic. 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 So now this reaction is called as hydrolysis. When cation of salt react with water and gives you which solution? Acid. Acidic solution. That is hydrolysis. This is one of the example of hydrolysis. Okay, class, यहाँ पे कौन सा आयन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ? cation, right? Cation. Cation. So salt of strong acid and weak base undergo Cation. Cation hydrolysis. Hydrolysis. ये आपको काम में आएगा कब? MCQs में, right? Cation hydrolysis. Okay. Class, then we see the salt of weak acid and strong base. Okay, salt of weak acid and strong base. So CH3 COONA. मुझे तो इसमें weak acid कौन सा है? Acetic acid. Acetic acid. CH3COH. CH3COH. Strong base कौन है? NaOH. Ammonium NaOH. हाँ, Sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं इसको, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो क्लास इसको हम लोग देखेंगे तो हमें मिलेगा एसिड CH3 COH, राइट? एंड NaOH.
So our first assumption is salt dissociate always completely. Most of the salt. Completely. Completely. This salt also dissociate completely as CH3COO minus and Na plus, right? Yes. वाटर वीक है सॉल्ट के सामने तो उसका डिसोसिएशन नहीं दिखाएंगे. हाँ, प्लस NaOH कैसे अपना स्ट्रॉन्ग बेस है. Strong Strong base. base. Strong base. Yes. Completely. Completely Na plus and dissociates. OH minus. पर कंपेयर टू NaOH डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज वेरी वेरी लेस. ये वीक एसिड है तो डिसोसिएट होगा पर कंपैरेटिवली बहुत कम. तो वी डोंट शो डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड बिकॉज इट इज वेरी वेरी लेस डिसोसिएटेड. सो सॉल्ट डिसोसिएट कंप्लीटली. So number of Na plus ions on reactant side and NaOH also dissociate completely. So number of Na plus ions on product side both are same. बराबर ना? ये भी Yes. पूरा dissociate हुआ है, ये भी पूरा dissociate हुआ है. फिर तक क्लास NaOH में Na कहाँ से आया है? CH3CONA से, right? Yes. तो क्लास अगर ये भी पूरा dissociate हुआ और ये भी पूरा dissociate हुआ है तो number of Na on both sides will be equal. Equal. तो Na plus क्या हो गया? Cancel हो गया. Can. तो anion of salt, right, is reacting with Water. Water. and solution may be OH Basic. answer basic. Basic. We call this reaction also as what? Hydrolysis. So anion of salt react with Anion hydrolysis. anion hydrolysis, right? This is anion hydrolysis. Yes. Yes. Okay, so we write this hydrolysis as anion. तो अब you should understand cation कौन सा anion कौन सा, because केवल questions आपको JW में मिलेंगे. आपके बोर्ड एग्जाम में तो कुछ इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. Anion hydrolysis, right? Plus then we see salt of weak acid and weak base. Okay, example CH3COO NH+. इसका नाम है ammonium hydroxide, right? We put in water, reversible reaction. Okay, class which acid? CH3COH. CH3COH. Acetic acid. And base. NH4OH. NH4. NH4OH. OH. तो क्लास यहाँ पे salt तो आपको मालूम है dissociate completely. Any salt you take, most of the salt dissociate completely. This salt also dissociates completely. CH3COO minus and NH4 plus. ठीक है? React with water. Okay. प्लस अभी यहाँ पे वीक दोनों भी है, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है. तो क्या सॉल्यूशन है एसिडिक और बेसिक? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था दोनों वीक है, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है. तो व्हाट इज सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? Neutral. नहीं सर, क्लास नहीं बच्चे लोग, ये कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? तो एसिडिक के लिए हमें हमारे पास होता है Ka. डिसोसिएशन कौन सा है? बेस के लिए क्या होता है? KB. AB. AB. तो क्लास अगर Ka का वैल्यू Kb से ज्यादा होगा मतलब क्या, कौन डिसॉल्व ज्यादा हुआ, एसिड या बेस? Acid. Acid. मतलब सॉल्यूशन में कम आयंस है पर H प्लस OH से ज्यादा है, राइट? Yes. देखो दोनों भी दो कम, देखो एसिड भी डिसोसिएट लेस हुआ है, बेस भी डिसोसिएट लेस हुआ है, पर फिर भी एसिड बेस से थोड़ा ज्यादा डिसोल्व हुआ है. Yes. सॉल्यूशन में आपके पास क्या ज्यादा है, कौन सा आंसर? H प्लस आयन ज्यादा है. H plus. आपका सॉल्यूशन कैसा होगा? Acidic. Acidic. ओके. प्लस अगर Ka ग्रेटर लेस देन Kb होगा सॉल्यूशन विल बी Basic. Basic. बेसिक होगा. और प्लस Ka इक्वल टू Kb होगा Neutral. Neutral. तो दोनों एसिड का, एसिड और बेस दोनों का Ka एंड Kb अगर इक्वल होगा सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल. तो क्लास आपने जो एग्जांपल लिया कौन सा, अमोनियम एसिड का, उस एग्जांपल के लिए ये तीसरा केस है क्या, Ka और Kb क्या दोनों का इक्वल है. तो क्लास सब वीक एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट के साथ ऐसा नहीं होगा, कभी Ka ग्रेटर देन Kb हो सकता है, कभी Ka लेस देन Kb हो सकता है, कभी Ka इक्वल टू Kb हो सकता है. क्लास तीन केसेस है, उसमें से भी एक केस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, राइट? Sir. आपको दोनों का Ka Kb वैल्यू, हाँ बोलो ना. यस बोलो पता बच्चा. चले सर कैसे मालूम पड़ेगा आपको एग्जाम में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं एग्जाम में. Yes, इसमें कौन सा एसिड है आपको एग्जाम में, यू डोंट हैव टू बाहर द वैल्यू ऑफ K एंड Kb, नेवर.
they provide the value because K and KB are experimentally determined value. और मैं पे बोला था जो भी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है आपको उसको एग्जाम में प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको. ओके, यस डाउट क्लियर हो गया? यस सर. तो K इक्वल टू KB होगा तो सोल्यूशन क्या होगा आपका? न्यूट्रल होगा. न्यूट्रल. तो क्लास अभी यहाँ पे कौन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, कटायन या आनायन? यहाँ पे कौन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ? दोनों कर रहे हैं. दोनों करते हैं. दोनों कर रहे हैं. तो पहले केस में रिएक्ट किया सिर्फ कटायन ने, कटायन. रिएक्ट किया सिर्फ अनायन में, थर्ड केस में रिएक्ट किया दोनों कटायन या फिर दोनों साथ में। दोनों तो बस इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट डेफिनेशन, द रिएक्शन इन व्हिच कटायन ऑफ सॉल्ट और anion of salt or both the ions of salt reacts with water वाटर. giving acidic solution or basic solution or even sometimes न्यूट्रल. न्यूट्रल सॉल्यूशन. that is called as what? Hydrolysis. हाइड्रोलिसिस. Okay, तो बस या तो सॉल्ट का कटायन या तो सॉल्ट का अनायन या तो सॉल्ट के दोनों भी आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके अगर आपको एसिडिक सॉल्यूशन दे रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन दे रहे हैं या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन. तो सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. ओके, किसने कुछ पूछा बीच में? प्लीज, सॉरी, एनीबॉडी आस्क एनी क्वेश्चन? नो वन. बस टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है. हाइड्रोलिसिस इज अ रिएक्शन इन विच, क्या बोलो? कटायन ऑफ सॉल्ट, कटायन ऑफ सॉल्ट, अनायन ऑफ सॉल्ट और बोथ. कटायन ऑफ सॉल्ट And anions of salt और अनायन ऑफ सॉल्ट बराबर react with water. react with water. या फिर बच्चे लोग और बोथ. और Or Or both the both. ions. both the ions of salt, right? React with Water. water, producing acidic Yes. or Basic. Basic or sometimes or neutral. sometimes even Neutral. Neutral. neutral solution, बराबर ना? यस. Yes. Is called as what? Hydrolysis. हाइड्रोलिसिस. Hydrolysis. ओके, हाँ. तो लाइक सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आपको एमसीक्यूज में नहीं आएंगे पर फिर भी किसी मतलब आपको जो लॉजिक लगाना होगा. प्लस आप अमोनियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो आपका सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू लिटमस रेड और रेड लिटमस ब्लू. अमोनियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो दैट सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू लिटमस रेड और रेड लिटमस ब्लू. नहीं बदलेगा ब्लू लिटमस ब्लू को रेड करेगा. ब्लू को रेड करेगा. बस क्योंकि अमोनियम क्लोराइड का वाटर सॉल्यूशन में वाटर होता है, वाटर में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है. एसिडिक होता है. एसिडिक. वो क्या करेगा? एसिडिक क्या करता है? ब्लू को रेड रेड करता में है. जाएगा. रेड करेगा. प्लस अगर आप सोडियम एसिड पानी में डालोगे तो रेड को ब्लू करेगा. ब्लू ब्लू रहेगा और रेड ब्लू हो जाएगा, राइट? ब्लू हो हो जाएगा. यस. जाएगा. यस. तो बस यहाँ पे डिपेंड, राइट? यस. कंडीशन. डिपेंड है, हाँ, या कंडीशन का एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल है. गॉड. ओके, मतलब अभी लास्ट थिंग है, हमने 3 टाइप के सॉल्ट देखे. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस. लास्ट कौन सा बचा है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. एंड स्ट्रॉन्ग बेस. फॉर एग्जांपल इसका NaCl चलेगा. NaCl NaCl. यस. Yes. NaCl NaCl का एसिड कौन सा है? HCl. HCl. ये कौन सा है? HCl. NaOH. NaOH. रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा आपको? NaOH या पहले HCl लिखते हैं, HCl प्लस NaOH, राइट ना? HCl प्लस NaOH. ओके, तो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा अभी यहाँ पे, मतलब इस चैप्टर से कुछ लेना देना है उसका. प्लस NaCl सॉल्ट है, दिस NaCl is strong electrolyte, right? Dissociates Yes. completely as Completely. NaCl minus, right? वाटर बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl के सामने. हाँ, HCl is strong acid, बरा ना? Dissociate complete plus and Cl minus. Okay, so NaOH is also strong electrolyte that also dissociates completely.
Na plus and H2O. So OH minus. NaOH. अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो Na plus कैंसिल, Cl minus कैंसिल, राइट। तो अब होता है यहाँ पे कौन सा ऑर्डर एरिया कर रहा है, कटान या आनायन? कौन सा भी नहीं कर रहे हैं। कौन सा भी नहीं कर रहा है। कौन सा भी तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। नहीं होगा। हो रहा है। हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, राइट। तो दिस रिएक्शन इज नॉट हाइड्रोलिसिस। द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। समझे आपको? सर वो बेस नहीं बनाएगा, मतलब न्यूट्रल नहीं बनाएगा। अब हाइड्रोलिसिस में क्या आपका डिफरेंस क्या चलता है हाइड्रोलिसिस का? कटायन रिएक्ट विद या तो कटायन रिएक्ट करना चाहिए वाटर के साथ, या तो आयन रिएक्ट करना चाहिए, या तो दोनों भी आयन रिएक्ट करना चाहिए वाटर के साथ। Yes. अब हाँ, तो वाटर किसी को तोड़ रहा है क्या? कटायन ना आयन को, तो क्या फायदा फिर? हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा ना यहाँ पे। यस सर, समझा। हाँ, तो एटलीस्ट वन आयन विद वाटर, या तो कटायन या तो आयन, या तो दो बोथ द आयंस। तो नथिंग इज रिएक्टिंग विद वाटर, या सब कैंसिल हो रहा है, राइट। यहाँ पे आपका नेट रिएक्शन वो देखना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको, डोंट वरी। आपका नेट रिएक्शन यहाँ पे वाटर गिव्स यू व्हाट? H plus and H plus and OH minus. तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है? डिसोसिएशन ऑफ वाटर, राइट। यस सर। फॉर्मेशन ऑफ आयंस। प्लस एक क्वेश्चन है, आपने शायद चैप्टर स्टार्ट किया रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, किया है? Yes. यस सर। इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं, आप वहां तक पहुंचे? मुझे आई डोंट नो इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ना सुनो कि इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या है, आपके जो आयंस है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्लास प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लास इसका रीजन बताओ। क्लास मैं जो बता रहा हूँ इस चैप्टर से कुछ लेना नहीं है। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? सर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, पार्शियली डिसोसिएट होता है ना। पार्शियल तो बहुत कुछ होता है, एसिडिक एसिड पार्शियल डिसोसिएट होता है, पर वो भी डिसोसिएट करने का क्लास। सर उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते। हाँ, आप जो बोल रहे हो सब करेक्ट है, सिर्फ इतना ही बोलो कि वाटर दुनिया का सबसे वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो जितने आयन Yes. बनाता है वाटर H plus एंड OH minus, वो नंबर बहुत छोटा है, निग्लिजिबल बहुत स्मॉल, छोटा है। ठीक है। तो क्लास आपने सीखा रहेगा कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस। अगर वाटर आयंस ही नहीं बनाएगा तो कंडक्ट कैसे करेगा इलेक्ट्रिसिटी? बराबर है? Yes. Yes. यस। तो प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, मतलब उसी वाटर में जब हम सॉल्ट डालते हैं तो वाटर बिकम गुड कंडक्टर। एनीबॉडी? Good conductor. सर वो में सॉल्ट का आयन डिसोसिएट होता है। Dissociate होता है। सॉल्ट नहीं, मैं वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू करता है, बोल रहा हूं मैं। सॉल्ट तो करता ही करता है, वाटर भी करता है उसके साथ। कैसे? सामने आपका आंसर है। वो भी dissociate हो जाता हाँ देखो यहाँ पे, भाई देखो, अगर सॉल्ट डाला अपने पानी में, NaCl डाला, Inside. वाटर जो अनडिसोसिएटेड है वो क्या बनाना शुरू करता है? कटायंस एंड है। Anion. Anion. बनाना वाटर साइंस बनाता है, और आयंस बनाएगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। Conduct करेगा। करेगा। कोई क्वेश्चन है, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर बट सॉल्ट सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर। रीजन? तो यही रीजन है, वहां पे हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, पर क्या हो रहा है? वाटर के कटायन आयन फॉर्म हो रहे हैं, बराबर ना? फॉर्म हो रहा है। यस। Yes. दिस वाज नथिंग टू डू, मतलब इसका इस चैप्टर से कुछ रिलेशन नहीं था, पर आपको एक थोड़ा लॉजिकल समझा क्या होता है। हाँ, यस सर। Yes, sir. गुड। तो क्लास ये हो गया आपका हाइड्रोलिसिस। तो क्लास इसके बाद ना कुछ डेरिवेशंस है जो आपके बुक में नहीं है, और आपको जेडब्ल्यू के लिए डेरिवेशन का बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम, 1-2 घंटा उसमें वेस्ट हो जाएगा। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, आपको मैं बताता हूँ फॉर्मूला याद कैसे रखता है। ओके, इसके ऊपर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे इस चैप्टर के, जो अपने स्टेट बोर्ड के बुक में मिसिंग है। ओके, तो हाइड्रोलिसिस के ऊपर के जो क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज न्यूमेरिकल बेस, तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले हैं, तो हमें डेरिवेशन में नहीं जाना है। आई विल शो यू, आपको मैं लिख के देता हूँ सीधे फॉर्मूला, आपको भाट करना है। एक्चुअली लॉजिकली भी याद रख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखेंगे। तो बस सबसे पहला तो आपको ये बताता हूँ मैं कि अगर हम लोग सॉल्ट में पानी डालते हैं तो सॉल्ट क्या होता है? हाइड्रोलाइज होता है, राइट? Yes. तो क्लास कभी भी कोई भी सॉल्ट 100% हाइड्रोलाइज नहीं होता, राइट? कभी भी कोई भी सॉल्ट Yes. 100% हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो क्लास समझो, हम मुझे बताओ इसके बारे में क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा को डिसोसिएशन कांस्टेंट। नहीं बच्चा, Degree of डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। degree of Degree of dissociation। dissociation. अच्छा, तो क्लास अपना इलेक्ट्रॉन कितने हद तक क्या हुआ? डिसोसिएट हुआ, राइट? कितना कितना वो डिसोसिएट हुआ?
समझो मेरे पास 1 मोल था, उसमें से 0.3 मोल डिसोसिएट हुआ, तो मैं बोलूंगा अल्फा कितना 0.3/1, या फिर बोलूंगा मैं परसेंटेज अल्फा इज इक्वल टू 0.3/1 इंटू 100 कितना होगा 30%, बराबर बच्चे लोग। 30%, yes. तब तक Yes. 30% इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ डिसोसिएट हुआ, राइट। तो वैसे हाइड्रोलिसिस में पूरा का पूरा सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होता, तो प्लस तो हम लोग यूज करते हैं टर्म h, स्मॉल h कॉल्ड एज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस आपको देखो दिस इज ओनली फॉर एमसीक्यू। जो लोग बोर्ड्स के लिए स्टडी कर रहे हैं ये पार्ट आप बिल्कुल मत समझो, सुनो, आपको ये आपके लिए नहीं है। दिस ओनली फॉर दोस स्टूडेंट व्हाट ट्राइंग फॉर जेडबल नीट, नॉट इवन फॉर सीटी। सीटी के लिए भी आपको नहीं आएगा ये, स्टेट बोर्ड के सीटी में। इट ओनली फॉर जेडबल एंड नीट। सो h, स्मॉल h स्टैंड फॉर व्हाट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। Degree of hydrolysis. ओके, प्लस एक होता है k, हम लोग k को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट। Yes. यहाँ पे Yes. k स्टैंड फॉर Hydrolysis constant. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। गुड, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ओके, प्लस सबको मालूम है कैपिटल C बहुत कॉमन टर्म यूज होता है इस चैप्टर में, Molarity. Concentration. कॉन्सेंट्रेशन। क्लास विच कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। Molar Molar concentration. Molar कोई भी नहीं, concentration. सिर्फ मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए C यूज होता है, बाकी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए C यूज नहीं होता। Yes. मोलर कॉन्सेंट्रेशन। क्लास अभी मैं आपको सब फॉर्मूला लिख के देता हूँ, एक टेबल बना, मैं जैसे बना रहा हूँ ऐसा, और सब फॉर्मूला लिख लो। और क्लास इजी है, आपको ज्यादा याद नहीं करना, मैं उसके शॉर्टकट आपको ये भी बताऊंगा। सिर्फ लास्ट वाला फॉर्मूला ना, वो एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम है, मतलब उसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, थोड़े डिफिकल्ट है, पर फिर भी आ चुके हैं बहुत बार, स्पेशली नीट में आ चुके हैं डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस में। तो हम लोग पहले बात करते हैं सॉल्ट ऑफ, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड एंड पहले हम कोई भी चलेगा, कुछ पे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके क्लास, ठीक है। हाँ क्लास, इसका नाम किसको याद है, शायद होना चाहिए, लास्ट लेक्चर में सीखा हम लोग इसको, KW। एनीबॉडी, अभी भी याद है, 2 लेक्चर पहले सीखा था KW, उसको बोलते क्या है। Ionic product of a water. वेरी गुड, आयोनिक। इसका हेल्प लेके हमने पीएच को डिफाइन किया था, राइट। Yes. sir. Yes, sir. मोलर Yes. कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन, OH minus. दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ Water. अपने बुक में H3O+ है, चलेगा ना, कुछ प्रॉब्लम पड़ता ना। हाँ ठीक है, क्लास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। हाँ, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। चलो, अगर आपको उसका KH वैल्यू चाहिए, व्हाट इज KH कॉल्ड एज, Hydrolysis constant. Hydrolysis constant. Constant. कौन सा, मैं तो इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लास इसमें वीक कौन है, Acid. एसिड है। क्लास याद रखो, जो वीक है ना, तो इसका KH का फॉर्मूला होता है KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA, क्योंकि वीक एसिड है, बराबर है। क्लास अब बोलोगे कहाँ से आया, तो क्लास इसका अलग डेरिवेशन है बहुत सारे, तो क्लास में इसके लिए पूरा 2 घंटे का लेक्चर वेस्ट करना नहीं चाहता, और आपको उसका जरूरत भी नहीं, कहाँ पे भी नहीं, अननेसेसरी आपका पेजेस भर जाएगा बुक का, और कुछ जरूरत नहीं है। तो KH इज इक्वल टू KW अपॉन K, Ka. और क्लास बहुत सिंपल डेरिवेशन है, मतलब ऐसे भी नहीं बहुत डिफिकल्ट है, कुछ हाई फाई लेवल के, पर रिक्वायर्ड नहीं तो क्यों करेंगे। हाँ क्लास, अगर मेरे पास सॉल्ट होता, दूसरा लिखता सॉल्ट में, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। क्लास यहाँ पे वीक कौन है, Yes. Base. बस आप गेस करो केज का क्या होना चाहिए, KW upon KB. KW by KB. KB. KW अपॉन KB, बराबर है। हाँ देखो, ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा इजी याद रहता है। प्लस तीसरा सॉल्ट कौन सा होता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड Weak acid and weak base. Weak base. एसिड एंड वीक बेस, राइट। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ओके, तो क्लास यहाँ पे वीक कौन है, दोनों. Oh no. दोनों.
क्लास गेस करो, चलो आप गेस करो, क्या लगता है आपको? KH इज इक्वल टू, KW upon KB into KA. वेरी गुड, KW अपॉन KA into KB. K into KB, दोनों भी आते हैं, बराबर। तो ये वीक एसिड वीक बेस। व्हाट आर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस? सर नहीं आएगा। लिखेंगे, नहीं आएगा, गुड, नहीं आएगा। बिकॉज़ हाइड्रोलिसिस होता होता है। ही नहीं, बराबर, गुड। हाँ क्लास, इफ यू रिमेंबर ऑसवाल्ड डायलेशन लॉ, नाम सुना है ऑसवाल्ड डायलेशन लॉ? Yes. Yes, sir. Yes. अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ K by C, K by C. Yes. Yes. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अल्फा यहाँ पे आपके पास क्या है? H है, राइट? Yes. हाँ, यहाँ पे H है, डिग्री ऑफ, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, हाइड्रोलिसिस में क्या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है, राइट? Hydrolysis. तो प्लस H इज इक्वल टू, प्लस बोलो यहाँ पे गेस करो क्या आएगा? रूट Under root of KH by C. KH by C, ठीक है एवरीवन? Yes, sir. KH by C। प्लस आपके पास KH का ऑलरेडी है, Yes. कितना है? KW अपॉन K, राइट? तो फॉर्मूला KW अपॉन KA into C. KA into C, समझा ये? Yes, sir. प्लस कुछ नहीं, Yes, H sir. इज इक्वल टू क्या होता है? रूट ऑफ KH अपॉन C। तो मैंने KW का KH का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो KH का वैल्यू KW अपॉन K है, तो आपका C एक्स्ट्रा, ठीक है, समझा? प्लस यहाँ पे नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपको H का ले आएगा, ओके आप बताओ मुझे। Under root of KW upon KB into C. KB into C। क्लास देखो, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं JEE में भी और नीट में भी, प्रोवाइडेड आपको ये सब फॉर्मूले आते हैं। और क्लास ये फॉर्मूले याद रखना बड़ी बात नहीं है, आपको कौन वीक है याद रखा तो भी ये बहुत इजीली याद हो जाएगा, राइट ना? KB into C। और क्लास तीसरा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, डेरिवेशन होता तो आपको बताता है ऐसे क्यों आ रहा है। तीसरा फॉर्मूला है, तो वीक एसिड वीक बेस में याद रखो, यहाँ पे सिर्फ KH होता है, C नहीं होता इस फॉर्मूला में। किसके? वीक एसिड वीक बेस के H इज इक्वल टू रूट ऑफ ओनली KH, और C नहीं होता। तो क्लास एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन, व्हिच हाइड्रोलिसिस सॉल्ट, ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हिच सॉल्ट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट? Weak acid and weak base. Weak acid, weak base. Concentration पर डिपेंड क्यों नहीं होगा? क्लास वो डेरिवेशन में आपको बोला ना, डेरिवेशन बहुत लेंथी डेरिवेशन है, मतलब मैं बताऊंगा, आपको चाहिए तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको फर्स्ट फॉर्म है, किसको या किसके लिए नहीं होता याद रखो, सिर्फ बोलो। Weak acid and weak Weak base. acid or weak Base. base. हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। Concentration. Concentration. तो इसका फिर H का क्या आएगा बताओ मुझे? Under root of KW upon K into KB. KW अपॉन K into KB। और क्लास बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन अगर वो पूछते हैं, क्लास बहुत कम पूछते हैं, तो इनका pH पूछ सकते हैं सोल्यूशन का, क्या pH। तो pH का फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हाँ क्लास आपको मैं वापस एक बार शॉर्ट करके दिखाऊंगा। pH अगर आपको फाइंड करना है तो आई टेल यू, इसका लिए शॉर्टकट बता दो कैसे याद रखते इसको। तो सबसे पहले pH फाइंड करना आपको, बराबर है? मतलब ये सबको अगर रूट के बाहर निकालते हम लोग, तो इसका सबका पावर क्या आएगा बोलो? इसका 1/2। 1/2। 1/2 ना, वेरी गुड, 1/2 पावर आएगा, गुड। Yes. वो आपको याद रखो। तो क्लास में इसका pH ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपको pH ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे pH इज इक्वल टू, तो बस ये KW बराबर है। तो इसका लगता है pH इज इक्वल टू P रेज टू KW, क्या P रेज टू KW। क्लास क्या होता है P KW बताओ मुझे? Minus log to the base 10 of KW. Yes, minus log 10 log to the base 10 KW. KW. Yes. KW बराबर। Yes. और 1/KW लिख सकते हैं माइनस। हाँ ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, गुड। हाँ पर फिलहाल मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, माइनस लिख सकते हैं ना ऐसा। Yes. pH इज इक्वल टू KW, ठीक है। तो अभी इसका भी मैं डेरिवेशन नहीं बता आपको, सीधा ये याद रखो, ये न्यूमरेटर में, राइट। और क्लास आपको सबका पावर कितना होना चाहिए? ये रूट के बाहर निकाल दो तो पावर हाफ, इसका पावर हाफ होना चाहिए, राइट।
तो हाफ। याद रखो क्लास, ये एकदम याद रखो। तो अभी ये दोनों के एंड सी दोनों भी क्या है बोलो, डिवाइडेड है ना Yes. डिनोमिनेटर में, तो लिखूंगा माइनस हाफ इंटू, मैं आपको बताऊंगा, आपको नेक्स्ट में आप मुझे खुद बताओगे, p रेज टू के, राइट, एंड माइनस हाफ इंटू एनीबॉडी, P raised to C. हाँ p रेज टू सी को क्या लिख To सकते हो, C. log c, log to the base 10 c। Sir नहीं Plus समझा मतलब last plus वाला what is p raised to c बोलो, मैं p raised to c लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। p raised to c क्या होता है, माइनस log to the base 10 minus log to the base 10 of C. c, वही होता है। हाँ मतलब आपको ना कॉन्स्टेलेशन का p raised to c कभी देते नहीं, आपको क्या देते हैं उसका, c देते हैं आपको। अभी इसको ये वैल्यू को रेडीमेड देगा नहीं, इसलिए लिखा है ऐसा, समझा। देखो ये आप p raised to c लिखो, नो प्रॉब्लम, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप p raised to c भी लिखो चलेगा। अगर p raised to c क्या होता है बताओ मुझे। Minus log to the base 10 of minus C. log to the 10. Base 10 C. सर तो वो माइनस माइनस सर प्लस नहीं हो जाएगा? हाँ वही लास्ट में प्लस। हाँ वो हो जाएगा, माइनस से ब्रैकेट खोलेगा ना? माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, पर खुलते वक्त ब्रैकेट खुलेगा तो वो अपने आप वापस माइनस हो जाएगा ना। देखो अगर ये अब पूरा पूरा टर्म है, ये देखो अब ये अगर ये नीचे मल्टीप्लाइड है, राइट, तो ये देखो अगर मैं ऐसा रखता हूँ यहाँ पे, समझा रहा आपको, तो यहाँ पे प्लस साइन है, पर ब्रैकेट बाहर निकालो Yes. तो आपको तो माइनस बन जाएगा ना, Minus. समझा नहीं। Yes, sir. Yes sir. Yes sir. गुड। हाँ प्लस सेकंड वाला आप मुझे बताओ, चलो। सर वो क्लिक नहीं हुआ इतना अच्छे से। नहीं डोंट वरी, ये क्लिक करना ही नहीं आपको, मैं आपको सिर्फ बाहर करने फॉर्मूला, डेरिवेशन में जाओगे तो मुझे था KW कहाँ पे, न्यूमरेटर में, Yes. बोलो क्या लिखोगे, हाफ इंटू बोलते जाओ, Half into P raised to KW. आगे बोलो, KB. Minus half P raised to minus KB. half to KB. KB. माइनस हाफ KB, वापस Minus half log to Minus the base half 10 log of to C. the base 10 C. 10C. log to the base 10 C, that's it, समझा। Yes. प्लस अभी लास्ट वाले का करो, लास्ट वाले का, सर log C की जगह KB आ जाएगा। बस दैट्स इट, बोलते जाओ, pH is equal to half of P. half P raised to KW KW. minus half P raised to KA. K minus आएगा। Raised to KB. P raised to KB. that's it। तो क्लास ये सब फॉर्मूला है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक साथ, और ये फॉर्मूले यूज करो जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। एक मिनट इसका, हाँ थोड़ा सा है बाहर, ठीक है, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, हाँ ठीक है। पर मैं हर एक चीज आपको बताना, उसके पीछे मतलब है लॉजिक है, पर क्लास अननेसेसरी बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो क्लास ये फॉर्मूला डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे ना, हो सकते हैं ना, नहीं Yes. आप Yes. डेरिवेशन जैसे करोगे उल्टा ज्यादा टाइम लगेगा, मैं तो बताता आपको। सिर्फ आपको यहाँ पे दिमाग में क्या रखना है, जो वीक होता है उसका के इक्वेशन में आ जाता है, बराबर है। These are formulae for different hydrolysis. Done? Hydrolysis salt off. Everyone, मेरा आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है आपको? बोलिए, कुछ डाउट है आपको, कुछ पूछना है, जो भी है, एनीथिंग। आवाज लैग हो रहा है क्या मेरा? हेलो, कांट यू हियर मी? मेरा आवाज नहीं आ रहा आपको? Yes sir. Yes, sir. ओके डन। कुछ पूछना है आपको यहाँ पे? तो क्लास दिस पार्ट इज नॉट इन योर टेक्स्ट बुक, ओनली रिक्वायर्ड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बाकी ये पार्ट जिनको सिर्फ बोर्ड एग्जाम को के लिए प्रिपेयर करना है, वो लोग ये पार्ट आपने नहीं किया तो भी चलेगा। ओके आगे बढ़ सकता हूँ मैं? Yes. 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 क्लास अब इसके आगे हम देखेंगे अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल डिस्कस टुडे। तो बिफोर आई डिस्कस दैट पार्ट, ओके मैं आपको एक पहला चीज ये सिखाता हूँ, ये अपने टेक्स्ट बुक में सबसे लास्ट में रखा है, और क्लास अगर ये सबसे लास्ट में रखेंगे तो हम लोग आगे का कोई भी टॉपिक सीख नहीं सकेंगे, सीक्वेंस में बहुत इश्यू है अपने टेक्स्ट बुक के। तो
तो हम आज सीखेंगे सबसे पहले कॉमन आयन इफेक्ट, and this effect is based on Lee-Chatelet's principle. Last year सीखा था हमने Lee-Chatelet's principle. Yes. Okay, तो मैं आपको don't worry, मैं आपको explain करूँगा common ion effect. Okay, so let me explain you with help of one example. Class acetic acid CH3 COH, right? Dissociate partially बराबर as CH3 COO minus and H H plus. plus. Class if I write dissociation constant for this acid Ka बराबर है. Okay, what will the value Ka? Concentration of CH3CO minus H CO plus minus upon concentration of CH3COH. concentration of anions into concentration of cations upon concentration of undissociated acid, right? Yes. CH3COH. Good. Plus, anybody value of K depends only on Temperature. Temperature. Pressure or pressure. Plus, अगर टेम्परेचर छोड़ के कोई भी फैक्टर चेंज हुआ, K चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. It depends only on temperature. तो value of K will change only if temperature changes, right? Yes. मतलब Yes. इस ऐसे K वैल्यू मुझे मालूम है, इसलिए लिख रहा हूँ मैं 1.8 into 10 raised to minus 5. एक्सपेरिमेंटली किया हुआ वैल्यू है, आपको बिल्कुल बाहर नहीं करना है. आई एम जस्ट टेलिंग यू एग्जैक्ट यही वैल्यू है, पर आई एम जस्ट टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ठीक है, मैं कंसेप्ट समझने के लिए वैल्यू लिख रहा हूँ, आपको किसी को भी ये वैल्यू बाहर नहीं करना है. आपको अगर चाहिए तो एग्जाम में प्रोवाइड करेंगे. ओके, तो प्लस दिस वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट? टेम्परेचर. तो आपके बीकर में एसिडिक एसिड है बराबर है CH3 COH, जिसका K वैल्यू कितना है 1.8 into 10 raised to minus 5. ओके, प्लस अभी इसी बीकर में अगर मैं बाहर से ऐड करता हूँ HCl. प्लस HCl क्या है? Strong Strong acid. acid. Dissociates Completely. Completely. तो इसमें अगर मैं HCl डालता हूँ तो प्लस HCl strong acid dissociate completely. तो HCl I'm adding from outside. Plus I have shown single arrow. Why? It dissociates completely. And use your understand CL science. Okay. प्लस ऐसे में से कोई भी चीज कॉमन है? H plus. H plus. कटायन कॉमन है, राइट? Yes. तो प्लस HCl is a strong electrolyte बराबर है? Yes. HCl is a strong electrolyte. Acetic acid is a Weak electrolyte. Weak electrolyte. weak electrolyte. ठीक है, लेट्स ये समझने की कोशिश करो. इंटरेस्टिंग weak electrolyte. क्लास माय क्वेश्चन इज, अगर हम लोग एसिडिक एसिड के सॉल्यूशन में बाहर से अगर HCl डालते हैं तो प्लस क्या सॉल्यूशन में H+ का नंबर बढ़ेगा? हाँ या ना? Yes sir. Yes, sir. बढ़ेगा. आपका क्योंकि HCl से भी H+ आएंगे ना सॉल्यूशन में, हाँ या ना? Yes. Yes. प्लस अगर H+ का नंबर बढ़ेगा तो आपका K भी बढ़ेगा. Yes sir. K बढ़ा. Yes. Yes. प्लस नहीं बढ़ सकता, अलाउड नहीं है, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं. सर शिफ्ट होगा आगे की तरफ. Shift होगा. वेरी गुड. आगे के नहीं बच्चा, तुमने बराबर बोला. क्या बोलना चाहिए? सिर्फ पीछे की तरफ बोलना चाहिए तुम्हें. क्यों? Yes sir. हाँ. पीछे की तरफ. इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द विच डायरेक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन. तो प्लस ज़्यादा तो प्लस हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? K का वैल्यू क्या रखना है? मेंटेन रखना है. कितना? 1.8 into 10 to minus 5, राइट? Yes. तो हमारे पास जो भी H+ का नंबर बढ़ा है उसको क्या करना है? हम लोग को कम करना कम है. करना है. तो प्लस ये रेशो वापस देखो, ये K का लिए 1.8 इन 10 समझे वैल्यू समझे कितना हो गया? 1.8 into 10 raised to minus 3 हो गया. समझो क्या डालने से? HCl डालने से तो वैल्यू बढ़ गया ना. तो Yes. प्लस आपको ये वैल्यू वापस क्या करना है? यहाँ पे लाना है. कितना? 1.10 to minus 5. तो इस वैल्यू को वापस कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? की तरफ जाना. H+ का नंबर कम करना कम पड़ेगा करना पड़ेगा. और इसका नंबर बढ़ाना पड़ेगा, राइट? तो जितना H+ का नंबर कम करते जाओगे, राइट, और जितना CH3 COH का नंबर बढ़ते जाओगे, अपने आप क्या होता है? रेशो कम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा रेशो वापस कितना हो जाएगा? 1.8 10 raised to minus 5. क्लास ये समझ में आ रहा है? हाँ सर वो अपने आप होगा ना, बाहर से ऐड करने की जरूरत है. क्या करना अपने आप? मतलब
CH3COH अपने आप डिक्रीज इंक्रीज होगा ना। बाहर से ऐड करने का मतलब समझे नहीं मुझे। देख तुम्हारे पास सिर्फ CH3COH था राइट, तो मुझे बताओ हम लोग K का फाइंड करते हैं, वी फाइंड K एट इक्विलिब्रियम, बराबर है। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्डेशन बिकम इक्वल, तो प्लस अभी जब इक्विलिब्रियम आएगा एट इक्विलिब्रियम, ये वैल्यू तो फिक्स होगा ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, तुम क्या करना चाहते हो, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हो राइट, तुम क्या करना चाहते हो, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाह रहे हो। कैसे करना चाह रहे हो, बाय इंक्रीजिंग कॉन्संट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। तो तुम्हें मालूम है लीचर्ड प्रिंसिपल चलता है, व्हेन सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस। आप सिस्टम को स्ट्रेस देना चाहते हो एट इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम क्या करता है, खुद को या तो फॉरवर्ड में या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है, सो दैट इफेक्ट ऑफ Opposite स्ट्रेस में इज जाता है। कैंसल्ड, सो दैट इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज कैंसल्ड। ऐसा कोई स्टेटमेंट सुना हुआ लगता है आपको? यस। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलो क्लास बहुत दिन हो गए, 1 साल हो गया उसको। लेट मी एक्सप्लेन यू ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल। आपके पास एक कंटेनर है, बराबर है, आपके पास और एक कंटेनर है, ठीक है। दोनों कंटेनर को हम लोगों ने 1-2 मिनट में फटाक से एक्सप्लेन करा था आपको। दोनों कंटेनर को हमने ज्वाइन करते हैं विद हेल्प ऑफ पाइप। कर दिया ज्वाइन। अगला बीच में लगा दिया एक स्टॉप कॉक, बीच में एक बंडल बंद लगे, बंद कर दिया इसको। ओके, क्लास क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, अगर हम लोग ये स्टॉप कॉक बंद है, अगर हम लोग यहाँ पे पानी भरेंगे राइट, तो यहाँ पे लेवल A पे रहेगा, बराबर है। तो यहाँ तक पानी हमने लेवल A तक पानी भरा है, प्लस B में कुछ नहीं होगा, बराबर ना। यस। Yes. प्लस जैसे स्टॉप कॉक ओपन कर दोगे, इसको उड़ा दो, स्टॉप कॉक को उड़ा दो यहाँ से, प्लस क्या होगा, यहाँ का लेवल कम होता जाएगा और यहाँ का लेवल बढ़ेगा। बढ़ता जाएगा। वही आपने सीखा था क्या पे, रिवर्सल रिएक्शन में। सो स्टार्टिंग में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम राइट, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज 0, बट एज रिएक्शन प्रोग्रेसेस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। ये कब तक होता है, टिल बोथ रेट बिकम इक्विलिब्रियम इज इक्वल राइट, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड। प्लस ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है, तो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, जब दोनों भी लेवल इक्वल हो जाएगा राइट, आपका क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, पर ना। यू से नाउ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अरे बाप रे, एक मिनट, ड्रॉ पेन इंसर्ट। सो यहाँ पे ये लेवल कम हुआ राइट, और ये लेवल बढ़ गया, तो दोनों लेवल सेम हो गया, बराबर है। ओके क्लास, अभी वो लेवल A एंड A। तो अब मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं आपको, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, ये इक्विलिब्रियम आ गया आफ्टर सम टाइम, तो मैं क्या करता हूँ, समझो मैं इस साइड पे थोड़ा और पानी डाल देता हूँ, डाल दिया। तो बस आपको ऐसा लगता है ये ऊपर और नीचे ऐसा रहेगा? नहीं ना। तो बस और थोड़ा पानी डालूंगा तो क्या होगा बच्चे लोग, बोलो। ये जो पानी है वो नीचे आना शुरू होगा, ये लेवल कम होना शुरू होगा और ये लेवल यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा राइट। बढ़ जाएगा। हाँ, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्लास यू गेट अगेन इक्विलिब्रियम राइट, वापस दोनों लेवल क्या हो जाएगा, Yes. इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा। तो क्लास नॉट एट सेम प्लेस, एट सम न्यू अदर पोजीशन। प्लेस, न्यू पोजीशन। तो क्लास दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। आपने जो सीखा था शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये होता है राइट। तो ये आप वापस के लिए आ गया, बट नॉट एट सेम प्लेस, एट सम अदर प्लेस, बराबर है। क्लास आर यू क्लियर? अभी दोनों लेवल सेम हो गया, हाँ या ना? यस। बस तो क्लास इससे जब डालोगे तो सिस्टम क्या कोशिश करेगा बताओ आपको, उसको क्या करना है, सिस्टम को K का वैल्यू क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट। तो सिस्टम क्या करेगा, उस वैल्यू को मुझे बताओ, बाय 5 कितना होता है, B4 होता है, और 400 बाय 100 भी 4 होता है राइट। Four होता है। उनको आपको क्या मेंटेन करना है, आपको रेशियो मेंटेन करना है राइट। यस। हाँ, तो क्लास आपको ये रेशियो कितना है, आपको ये K वैल्यू कितना है, 4 आपको मेंटेन करना राइट। तो क्लास क्या करो, आप कुछ भी करो, आप एक को बढ़ाओ एक को कम करो, कुछ भी ऐसा करो जिससे क्या हो जाएगा, वो K वैल्यू क्या आ जाएगा, वापस अपने लाइन पे आ जाएगा, बराबर है।
तो क्लास इसके लिए आपको क्या Yes. करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम को कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में, Backward. बैकवर्ड में। Backward. क्लास उससे क्या होगा बताओ मुझे अपने आप, इफ यू शिफ्ट इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा अपने आप? सर वापस Cation anion combine हो जाएगा और वो CH3COH बन जाएगा। कटायन कम का CH3COH बनेगा। तो क्लास ये कब तक होता रहेगा, जब तक नया आपका वैल्यू वापस equilibrium कितना नहीं attain नहीं आता? होता है। नहीं, हाँ नया पोजीशन, और जब तक आपका वापस वैल्यू कितना नहीं होता, 1.8 10⁵ नहीं होता, तब तक ये होता रहेगा, राइट? Yes. तो क्लास ठीक है, मैं एक सिंपल क्वेश्चन वापस लास्ट क्वेश्चन पूछता आपको। तो क्लास समझो आपके पास सिर्फ एसिडिक एसिड था, क्या था सिर्फ आपके पास? एसिडिक एसिड। बीकर में सिर्फ एसिडिक एसिड था, प्योर एसिडिक एसिड, नो वाटर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एक्वियस सॉल्यूशन एसिडिक एसिड, नो HCl। तो क्लास उसका अल्फा कितना समझो, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट समझो 8.8 थे और नंबर ऑफ मोल्स थे समझो 1 थे। क्लास व्हाट इज अल्फा, परसेंट अल्फा? 0.8 80%. 80%. तो आपको परसेंट अल्फा कितना था? 80%, राइट? प्योर एसिडिक एसिड बराबर ना। क्लास अभी इसके अंदर एसिड डाला आप लोगों ने, तो क्लास अल्फा वैल्यू सेम रहेगा, चेंज होगा? आपको क्या लगता है अल्फा वैल्यू? मैं के ने बात कर रहा हूं, के की बात नहीं कर रहा मैं, अल्फा वैल्यू बात कर रहा हूं। चेंज होगा सेम रहेगा? Same रहेगा. अल्फा बच्चों लोग सोचो अल्फा वैल्यू, के नहीं बोल रहा मैं, अल्फा बोलो। चेंज होगा. चेंज होगा। क्लास क्यों चेंज होगा? क्योंकि आपके कटायन और अनायन क्या कर रहे हैं, वापस कम्बाइन होकर क्या बना रहे हैं, अनडिसोसिएटेड बना रहे हैं, राइट? तो पहले आपका 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ था, ठीक है? HCl डालने से पहले आउट ऑफ 1 मोल हाउ मेनी मोल्स वर डिसोसिएटेड? 0.8। एग्री? Yes. हाँ। Yes. तो बस अगर आप एसिड डालोगे तो आपको बैकवर्ड में शिफ्ट करना है। तो जो डिसोल्व हुए थे उसमें से, जो डिसोल्व हुए थे 0.8, उसमें से आपको कुछ कम करने पड़ेंगे, कहाँ पे शिफ्ट करने के लिए? बैकवर्ड में शिफ्ट करने के लिए। तो आपका डिसोसिएशन बढ़ गया, कम हो गया? 0.8 से थोड़ा कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। Yes sir, समझा। नहीं समझा अभी भी? एक बार फिर से बता ना। मैं बता रहा हूँ देखो, आपने HCl जब नहीं डाला था तो आउट ऑफ 1 मोल हाउ मेनी मोल्स वर डिसोसिएटेड? 0.8 मोल फॉर एग्जांपल। हाँ, तो क्लास अगर HCl डालोगे तो आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम को क्या करना है, बैकवर्ड में शिफ्ट करना है, राइट? यस तो क्लास सर, जो डिसोल्व हुआ है आपको उनको क्या करना है, वापस कंबाइन करना है। आपको कौन सा रिएक्शन करना है आपको मालूम है? यहाँ पे CH3COO माइनस को वापस H+ से कंबाइन करके आपको क्या बनाना है, वापस CH3COH, ऐसा आपको करना है। तो क्लास आप क्या कर रहे हो, जो डिसोल्व उनको अनडिसोल्व कर रहे हो, तो क्लास नंबर ऑफ डिसोसिएट will be, number of mole dissolved will be decrease or increase? डिक्रीज होगा। Increase होगा. And class that effect is called as what? Common ion effect. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Common ion effect. तो क्लास मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और भी एग्जांपल दूंगा बहुत अच्छे सारे, पर आपको फिलहाल फॉर दिस लेक्चर कॉमन आयन इफेक्ट, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लास अभी हाँ इससे डालने के बाद वो अल्फा कितना समझो, कितना हो गया? सिर्फ 0.3 है। क्लास क्यों 0.3 है बोलो? बचा हुआ 0.5 क्या हुआ बोलो? कोई बताएगा बचा हुआ 0.5 क्या हुआ? कंबाइन हो गया सर। वापस कंबाइन होके पीछे चला गया, राइट? क्या करने के लिए? Yes. इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट करने के लिए। वेरी गुड। अभी कितना डिसोल्व हुआ है? सिर्फ 30%, बराबर ना? 30%. हाँ सर मतलब वो नेट अल्फा Degree of- डिक्रीज होगा ना? अल्फा इफेक्ट है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of weak electrolyte is suppressed। क्लास सप्रेस मतलब क्या? बढ़ना है, कम करना? आप सप्रेस कर रहे हो, कम करना. कम करना। हाँ, is suppressed by addition of strong electrolyte in it, right? हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेपरेट कर सकते हैं by adding a strong electrolyte in it having क्या? एन मतलब कोई तो एक, आयन मतलब चलो क्या? कटायन या फिर एनायन। Anion. क्या? कॉमन। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉमन आयन इफेक्ट। हम लोग इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन आयन इफेक्ट। एनी डाउट हियर? तो क्लास आप क्या कर सकते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कम डिसोल्व होता है, राइट? तो उसका रिएक्शन आप और भी कम कर सकते हो। कैसे? उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, जिसमें या तो कटायन या तो आयन क्या है?
वीक इलेक्ट्रोड के साथ क्या है, कॉमन है। कॉमन है। Okay. तो क्लास में होता, अगर मेरे पास HCl है, राइट, इट डिसोसिएट एज H प्लस एंड Cl माइनस। क्लास में अगर मैंने Na अमो ये डाला, क्या डाला, HNO3 which gives me H plus and NO3 minus। प्लस यहाँ पे कोई आयन कॉमन है, H प्लस। H plus. plus तो क्लास हम Cation. यहाँ पे HCl का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, सप्रेस होगा या नहीं होगा? होगा। नहीं होगा बच्चा, बिल्कुल नहीं होगा क्लास, क्योंकि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सर नहीं क्लास समझा। HCl को क्लास किसको सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, वीक को। weak electrode स्ट्रॉन्ग का सप्रेस नहीं, क्लास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड ऑलरेडी डिसोसिएट कंप्लीटली अंडर एनी कंडीशन, वो बेचारा ना, उसका नाटक नहीं होता, वीक का प्रॉब्लम होता है, राइट। Yes, हम लोग yes. वीक को सप्रेस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग को सप्रेस नहीं नहीं कर कर सकते। कर सकते हैं। एग्जांपल लिया, JEE आप गलती ना करो इसलिए, समझा। तो अब स्ट्रॉन्ग का Yes, sir. और क्लास स्ट्रॉन्ग का डिग्री हमेशा कितना होता है, हमेशा 1 ही होता है, इट डिसोसिएट ऑलवेज 100%। उसके साथ कौन होता है उसको उससे फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। आर यू क्लियर? Yes. प्रॉब्लम Yes. किसको होता है, Yes. प्रॉब्लम किसको होता है, वीक को होता है। ओके, तो क्लास यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कौन सा है, अगर आप ये वर्ड नहीं लिखोगे तो इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्लास डेफिनेशन कैरीज नो मीनिंग, डेफिनेशन कैरीज 0 मार्क। होप इट इज क्लियर। Yes. क्लास मेरे पास NH4OH है, डिसोसिएट पार्शियली एज व्हाट, NH4 प्लस एंड OH माइनस, राइट, NH4 प्लस OH माइनस। क्लास उसमें अगर NH डाल के मैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? Yes, sir. कर सकते हैं। क्लास क्यों? क्योंकि strong NH4OH ये वीक है और उसके अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं, Strong Strong स्ट्रॉन्ग electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट containing anion कॉमन। तो क्लास इस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस कर सकते हैं। तो क्लास याद होगा किसको सप्रेस कर सकते हैं, वीक को। Weak. क्या डाल के, NH4OH. क्या डाल के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Strong electrolyte. कोई भी नहीं चलेगा, ऐसा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिसमें या तो कटन या तो आयन क्या है, कॉमन है। Common. क्लास अगर NH4OH में अगर मैं डालता हूँ HCl, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सॉरी, NH4OH में समझो डालता हूँ मैं, क्या डालता हूँ, NH4OH में मैं डिसोसिएट पार्शियली NH4 प्लस एंड OH माइनस। क्लास में अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला स्ट्रॉन्ग है, कौन सा, NaCl, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो क्लास यहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि NH4OH के साथ ना तो कोई कॉमन आयन है, ना कटायन कॉमन है, ना आयन कॉमन है। तो क्लास दैट्स व्हाई नेम ऑफ इफेक्ट इज व्हाट, कॉमन आयन इफेक्ट। हाँ क्लास, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये आपके टेक्स्ट बुक का सबसे लास्ट पार्ट है, एक आधा पेज रहेगा, हार्डली आपको 2 मिनट लगेगा, आप ये लेक्चर खत्म होने के बाद उसको पढ़ लो एक बार, कॉमन एन इफेक्ट। ओके क्लास, JEE में कॉमन एन इफेक्ट के बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत टफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अगर आप करना चाहते हो उस लेवल के क्वेश्चंस। तो ओके, तो विल डिस्कस दैट नेक्स्ट लेक्चर। लगता है आज के लिए इतना काफी है। ओके, स्टॉप नाउ। कुछ पूछना है आपको, डाउट्स, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट बिफोर